Assalamualaikum. Welcome to the Country School Walter Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Hey students, today we are going to read unit number 10, topic name Project Lucy. This unit is about a boy named Sam Boulder who wanted to help disabled people, so he started a project named Project Lucy in order to make places accessible to children with disabilities. Now let's start reading. Unit number 10, Project Lucy. I am Sam Boulder. I am 8 years old and live in the state of New Jersey, USA. Each year, many people visit the town where I live. One popular attraction is called Lucy the Elephant. Lucy is a huge wooden structure in the shape of an elephant. Children can climb up a winding staircase in one of Lucy's legs and ride her by sitting on the seats at the top. From there, they can enjoy an unforgettable view. Many people also buy mementos at the gift shop. मैं सैम बोल्डर हूँ। मैं 8 साल का हूँ और अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी में रहता हूँ। हर साल बहुत सारे लोग मेरे टाउन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सैर करने आते हैं। लोगों के आने की मशहूर वजह, जो दिलचस्पी की वजह है, वो लूसी द एलिफेंट है। लूसी हाथी की शेप का बना हुआ लकड़ी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। लूसी के एक पैर में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और बच्चे इसके ऊपर से ऊपर चढ़ सकते हैं और ऊपर बनी हुई सीट्स पर बैठकर सवारी कर सकते हैं। वहाँ से वो एक नाकाबिले फरामोश यानी ऐसी चीज़ जिसको भूल ना सके नज़ारे को एंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गिफ्ट शॉप से यादगारी चीज़ें यानी तोहफे भी खरीदते हैं। My cousin Victor came to stay with us. We decided to spend a day out and visit Lucy. I was delighted to be Victor's guide. Victor is almost blind and needs someone to be his eyes and help him along. The next day, when we were about to enter Lucy, I suddenly felt sick and had to rush to a toilet nearby. Poor Victor was left alone outside Lucy. He couldn't go into Lucy and climb the winding staircase by himself. I felt so bad about this that I decided then I was going to make a difference for children who are disabled like Victor and can't explore places like I can. एक वीकेंड पर मेरा कज़न विक्टर हमारे साथ रहने के लिए आया। हमने एक दिन बाहर गुजारने और लूसी से मिलने यानी सैर करने का फैसला किया। मैं विक्टर का गाइड बनने पर बहुत ज़्यादा खुश था। विक्टर तकरीबन ब्लाइंड था, उसे नज़र नहीं आता था और उसे ज़रूरत थी कि कोई उसकी आंखें बने, उसकी मदद करे। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब हम तकरीबन लूसी में के अंदर दाखिल ही होने वाले थे यानी लूसी में जाने ही वाले थे, तो अचानक आई फेल्ट सिक, मैं बीमार हो गया और हैड टू रश टू अ टॉयलेट नियर बाय और जल्दी से भागकर करीबी टॉयलेट चला गया। जो बेचारा विक्टर था वो लूसी के बाहर ही खड़ा रह गया। वो खुद से अंदर नहीं जा सकता था क्योंकि वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड था और ना ही वो उसकी लूसी की सीढ़ियाँ चढ़ सकता था। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे बच्चों के लिए जो विक्टर की तरह डिसेबल्ड हैं यानी उनमें कोई ना कोई माजूरी है और ख़ुद से मेरी तरह अपने काम नहीं कर सकते या कहीं नहीं जा सकते, कुछ मुख्तलिफ करूँगा। I discussed the matter with my parents. Dad came up with the idea of Project Lucy. We held a poster contest to get other kids interested in making places accessible to handicapped people. The theme of the poster contest was making a difference. You had to think of ways to make life easier for anyone with any kind of physical or learning disability and present it in a poster. The response was incredible and we called the kids to thank them for submitting their entries.
Some of my parents' friends judged the entries. The winning posters were displayed at the gift shop. We managed to sell about 1,000 posters at $1 each. मैंने ये मामला अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया। डैडी ने प्रोजेक्ट लूसी का आइडिया दिया। हमने एक पोस्टर कॉन्टेस्ट कंपटीशन नक्की करवाया जिसका मकसद बच्चों को की दिलचस्पी इस बात पे करना था कि किसी भी तरह की माजूरी वाले लोगों की हर जगह तक रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है। इस पोस्टर कॉन्टेस्ट का थीम था मेकिंग का डिफरेंस, यानी फ़र्क पैदा करना था। आपको ऐसे तरीक़ों के बारे में सोचना था कि किसी भी तरह की जो डिसेबिलिटी यानी जो माजूरी है उन लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है और उसको पोस्टर पे लिखना था। इस कंपटीशन का जो पोस्टर कॉन्टेस्ट कंपटीशन था, इसका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा रहा। हमने ऐसे बच्चों को जिन्होंने इस पोस्टर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया। मेरे पेरेंट्स के कुछ दोस्तों ने ये जो एंट्रीज़ थी, ये जो बच्चों के आइडियाज़ आए थे, इनको जज किया और जो विनिंग पोस्टर्स थे उसको हमने गिफ्ट शॉप पर डिस्प्ले कर दिया और हर पोस्टर को $1 की कीमत पर हमने तकरीबन 1,000 पोस्टर सेल किए। We also had an auction. We collected nice items from our family and friends and put them up for bidding. The auction was a great success. My dad also persuaded a local restaurant to donate $1 to Project Lucy for every person who ate at the restaurant on one special day. This event raised US $500 for Project Lucy. हमने ऑक्शन यानी नीलामी भी की। हमने अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स से बहुत कुछ अच्छी चीज़ें कलेक्ट की और उन्हें नीलाम कर दिया, यानी उनको सेल कर दिया। ये जो नीलामी थी इसमें बहुत कामयाबी हुई। मेरे डैडी ने एक लोकल जो मकामी रेस्टोरेंट था उसको इस बात पर राज़ी किया कि वो एक स्पेशल डे पर जो भी खाना खाए उसके रेस्टोरेंट पर, उसके बदले में वो $1 प्रोजेक्ट लूसी के लिए डोनेट करेगा। इस इवेंट ने $500 प्रोजेक्ट लूसी के लिए इकट्ठे किए। Since then, we have entered Project Lucy in the National Make a Difference Day award competition. If we win, we will receive a sum of $10,000. Part of this money will go towards making it possible for everyone to enjoy visiting Lucy. फिर हमने प्रोजेक्ट लूसी को कौमी मेकर नेशनल डिफरेंस डे की कंपटीशन अवार्ड में शामिल किया। अगर हम जीते तो हमें $10,000 मिलेंगे। ये जो अमाउंट होगी इसका कुछ हिस्सा हर किसी के लिए इस बात को मुमकिन बनाएगा कि वो लूसी के विजिट को, की सैर को एंजॉय कर सके। We hope to spend the money on a few things. A ramp with special guide drops so everyone can get to the top of Lucy, an information leaflet about tourist attractions printed in Braille for blind and partially sighted people, decoration with different materials and textures for disabled people to touch and feel. हमें उम्मीद थी कि जो रकम अगर हम जीत जाते तो कुछ नई चीज़ों जैसा कि एक खसूसी गाइड रस्सियों वाला रैम्प बनाने पर खर्च होगी ताकि हर शख्स आसानी से लूसी के ऊपर के टॉप पर जा सके। ऐसे लोग जिनको बिल्कुल नज़र नहीं आता या जिनको कम नज़र आता है, ऐसे लोगों के लिए ब्रेल में प्रिंट किया हुआ रिसाला सयाहों की मालूमात के लिए प्रिंट करना और माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ मटीरियल से सजाई गई चीज़ें बना डिस्प्ले करना जिन्हें वो टच और फील कर सकेंगे। इस यूनिट में ये बताया गया है कि एक लड़का जिसका नाम सैम बोल्डर था, उसने किस तरह से कोशिश की कि ऐसे लोग जिनमें किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी या माजूरी होती है तो उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जा सकता है और उनकी मदद किस तरह से की जा सकती है।